للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم استقبال ماہ میلاد کے اس اجتماع میں جمع ہیں۔ نعت خوانی کا سلسلہ جاری ہے۔ آئیے کچھ نثر کی صورت میں بھی اس ماہ مبارک کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، فضائل سنتے ہیں، اور اس ماہ مبارک کا استقبال کیسے کرنا چاہیے، امیر اہل سنت نے اس پر بھی ہماری کوئی تربیت فرمائی ہے۔ تو آئیے مل کر ان مدنی پھولوں کو سماعت کرتے ہیں۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ فضیلتوں اور سعادتوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ وہ ذات پاک جن کو اللہ کریم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وہ عظمت والے نبی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی ماہ مبارک میں تشریف لائے، اور یوں اس مہینے کو سب فضیلتیں اور سعادتیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت یعنی آپ کی برتھ کے صدقے میں نصیب ہوئیں۔ حضرت سیدنا امام زکریا بن محمد بن محمود قزوینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود یعنی بابرکت ذات کے صدقے دنیا والوں پر بھلائیوں اور سعادتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، اور اسی مہینے کی 12 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ربیع الاول کی عظمتوں کے کیا کہنے؟ یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو کوئی عید ہوتی، نہ کوئی شب برات، بلکہ کون و مکان کی تمام تر رونق اور شان اس جان جہان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے دھول کا صدقہ ہے۔ اس مبارک مہینے کی 12ویں تاریخ بہت ہی سعادتوں اور عظمتوں والی ہے، اور یہ تاریخ عاشقان رسول کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے۔ صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ، کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ، ہمیں تو جان سے پیاری ہے 12ویں تاریخ، ہمیں تو جان سے پیاری ہے 12ویں تاریخ، عدو کے دل کو کٹاری ہے 12ویں تاریخ، عدو کے دل کو کٹاری ہے 12ویں تاریخ۔ علماء کرام نے اس بات کو واضح الفاظ میں تحریر فرمایا ہے کہ جس رات ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت با سعادت ہوئی، وہ شب قدر سے بھی افضل ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، بے شک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ حضرت سیدنا علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمق مرزوق تلمسانی رحمۃ اللہ علیہ نے شب ولادت مصطفیٰ کے شب قدر سے افضل ہونے پر جنل جنتین فی شرف اللیلتین کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، جس میں دونوں راتوں کے فضائل اور شب ولادت کے افضل ہونے پر دلائل بیان فرمائے ہیں۔
आला हज़रत कितनी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं, आरिफ भाई ज़रा अगर ये शेर में हो जाए, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, अरे जान है तो जहान है। पढ़िए सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ईमान की बुनियाद है, और मोहब्बत की एक अलामत यह है कि महबूब का कसरत से ज़िक्र किया जाए। रिवायत में है, मन अहब्ब शैअन अक्सर मिन ज़िक्रिह, यानी जो किसी से मोहब्बत करता है इसका कसरत से ज़िक्र करता है। यूं तो सारा साल हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करना और अपने कौल व फ़ेल के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करना चाहिए, लेकिन बिलखुसूस रबीउल अव्वल में अल्लाह करीम की इस अजीम नेमत के शुक्राने के तौर पर ज़िक्र हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत करनी चाहिए। और ज़िक्र के कई तरीके हैं। मसलन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना, नाज शरीफ पढ़ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत बयान करना, मोहल्लेदारों, राह चलने वालों वगैरह और हुकूक आम्मा का ख्याल रखते हुए शरीयत के मुताबिक महफिल मिलाद करना और इसमें शरीक होना वगैरह ज़िक्र रसूल हैं। लिहाजा रबीउल अव्वल में ये तमाम चीज़ें हमारे मामूलात में शामिल होनी चाहिए। लगे हाथों एक और अर्ज़ भी कर दूं कि प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, बिलखुसूस जहाँ रबीउन नूर शरीफ में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कसरत से ज़िक्र करने की हमें तरगीब दी गई, उसका एक तरीका और एक अंदाज़ ये भी है कि कम से कम इन 12 दिनों के लिए हम अपने घर में चंद मिनट के लिए सब घर वाले अहबाब मिलकर दुरूद पाक पढ़ने का एक मखसूस वक्त मुकर्रर कर लें। बिलफर्ज ये 5-7 मिनट ही हो, 12 मिनट हो, इससे ज़्यादा हो, अगर हम ये वक्त मखसूस करके सब घर वाले मिलकर खुश दिली के साथ, दिल जमई के साथ बैठकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें तो इंशाअल्लाह हमें इसकी बरकतें भी हासिल होंगी और हमारे घर में इंशाअल्लाह खैर व बरकत का भी नुज़ूल होगा। अब चांद रात आने वाली है, आज 29 सफ़र है, मुमकिन है कि कल चांद रात हो पाकिस्तान में या परसों चांद रात हो। तो चांद रात को क्या करना है ये भी कुछ मदनी फूल हम सुन लेते हैं और अमीर अहले सुन्नत के एक मकतूब की कुछ झलकियाँ भी समात कर लेते हैं ताकि हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि हमें माह रबीउल अव्वल का इस्तकबाल किस तरह करना है। चांद रात को इन अल्फाज में 3 बार मसाजिद में ऐलान करवाइए, तमाम इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों को मुबारक हो कि रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आ गया है। आए प्यारे मुस्तफा अहलन व सनन मरहबा, आए प्यारे मुस्तफा अहलन व सनन मरहबा, आए प्यारे मुस्तफा अहलन व सनन मरहबा। रबीउन नूर उम्मीदों की दुनिया साथ ले आया, रबीउन नूर उम्मीदों की दुनिया साथ ले आया, दुआओं की कबूलियत को हाथों हाथ ले आया। आए प्यारे मुस्तफा अहलन व सहलन मरहबा, आए प्यारे मुस्तफा अहलन व सहलन मरहबा। माशाअल्लाह,
मकतूब अत्तार की झलकियाँ, अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया के रिसाले सुबह बहारा से चंद मदनी फूल जो यहाँ पर तहरीर किए गए हैं, इंशाल्लाह वो सुनते हैं। ये भी नियत कर ले कि इंशाल्लाह ताला रिसाला सुबह बहारा ये भी रबीउन नूर शरीफ का, रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नज़र आने से पहले पहले पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह रबीउल अव्वल शरीफ बनाने का हमें मज़ीद अंदाज समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरह इसका इस्तकबाल करना है और रबीउन नूर शरीफ को किस तरह मनाना है। चुनाचे जश्न विलादत की खुशी में मस्जिदों, घरों, दुकानों, सुवारियों पर नेज़ अपने मोहल्ले में भी सब्ज सब्ज परचम लहराइए, खूब चरागा कीजिए, अपने घर पर कम से कम 12 बल्ब जरूर रोशन कीजिए। जश्न विलादत की खुशी में बाज़ जगह गाने बजाए जाते हैं, ऐसा करना शरन गुनाह है। नाते पाक बेशक चलाइए मगर धीमी आवाज़ में और एहतियात के साथ कि किसी इबादत करने वाले, सोते हुए या मरीज वगैरह को तकलीफ ना हो। नेज़ अजान व इकामत नमाज की भी रियायत कीजिए। औरत की आवाज़ में नात की कैसेट मत चलाइए। गली या सड़क वगैरह पर इस तरह सजावट करना, परचम गाड़ना जिससे रास्ता चलने और गाड़ी चलाने वाले मुसलमानों को तकलीफ हो, ये नाजायज है। अपने रब से हम गुनाहगारों को बख्शवाने वाले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर शरीफ को रोज़ा रखकर अपना यौम विलादत मनाते रहे। आप भी याद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 12 रबीउल अव्वल शरीफ को रोज़ा रख लीजिए। 11 की शाम को वरना 12वीं शरीफ की रात को गुस्ल कीजिए। हो सके तो इस ईदों की ईद की ताज़ीम की नीयत से ज़रूरत की तमाम चीज़ें नई खरीद लीजिए। जश्न विलादत की खुशी में कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जिससे हुकूकुल इबाद ज़ाया हों। तमाम इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें जश्न विलादत की खुशी में सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की नीयत भी कर लीजिए। जश्न विलादत की खुशी में लाइटिंग ज़रूर कीजिए मगर बिजली फराहम करने वाले इदारे से राब्ता करके जायज़ ज़राए से लाइटिंग कीजिए। जुलूस में हत्तुल इम्कान बावजू रहिए और बाजमात नमाज की पाबंदी का ख्याल रखिए। जुलूस में तकसीम रसाइल कीजिए, यानी मकतबतुल मदीना की कुतुब और रसाइल नेज़ मुख्तलिफ मेमोरी कार्ड्स वगैरह खूब तकसीम कीजिए। खाने की चीज़ें, फल वगैरह तकसीम करने में फेंकने के बजाय लोगों के हाथों में दीजिए कि ज़मीन पर गिरने, बिखरने और कदमों तले कुचलने से इनकी बेहुरमती होती है। आइए हम सब भी नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इन मदनी फूलों के मुताबिक रबीउन नूर शरीफ का इस्तकबाल भी करेंगे, रबीउन नूर शरीफ को इसी तरह गुजारेंगे और 12वीं शरीफ की रात भी एहतमाम करेंगे, जुलूस का भी एहतमाम करेंगे और इंशाअल्लाह अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र में गुजारेंगे। अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए।